कितने लोगों ने देख लिया वीडियो? ओके, सिर्फ 5-6 लोग। हाउ अबाउट अदर्स? How you'll understand what I am trying to tell today? Okay, so let us understand what is mean by the oscillation, and then we'll go for yes, Shreyansh. Yeah. Okay, Amit and Shreyansh. Okay, you have watched video, so you can understand it very easily. And we know the oscillation, and this oscillation is all pervading. All pervading का मतलब क्या होता है? It is everywhere. To take an example of any part of the universe, not this world only, universe. So it is a universal phenomenon. You can think of anything on the earth, on the sun, on everywhere there will be oscillation. There is oscillation. There are oscillations. Okay? But before that, let me ask you, where do you find oscillations in your daily life? Not in physics lab, in your home. Where do you find the oscillations? Anyone? क्लॉक में। Yes, in the clock. Where? वो उसकी टेल जैसा होता है ना। Bell जैसा? Pendulum. Yeah, right. या सर्कुलर। Any other? Sir, swings. Swings, yes. So you have Musical played. Yeah. instruments. Pardon? Musical instruments. Yeah. Which musical instrument? फ्लूट होगा सर, जैसे गिटार वगैरह आई गेस। Okay. So what is the difference between flute and guitar vibrations? Flute has a vibration, guitar also has the vibration. They are different. Sir, flute has air vibration, guitar has string vibration. Very good. Very nice, Pranjal. Flute has the air column vibration that you have studied in 12th. And in case of guitar or any string instrument, we have the string vibration. Any other? Of course, you can talk about any musical instrument except the electronic, and you will have the vibrations there. Electronic, we use the oscillator, electronic oscillator. Yeah. Any other? रबर। Sir, drums. Yes, rubber, drums, right? Or Sir, tabla. yeah, tabla. So tabla is also instrument, musical instrument. So there also you find the vibrations or oscillation. Any other? Anything that you normally use every day and you don't स्टील वेसल्स। नहीं, स्टील वेसल में वाइब्रेशन कहाँ से आएंगे? Unless you start playing with them, otherwise they don't have the vibration. Sir, speaker. Yes, speaker is one of the example. Brushing our teeth, Sir,
it may not be called as oscillation because it is not regular. Okay? I mean, brushing is regular, but the motion of, say, brush is not regular. It is not to and fro or up and down. It may be irregular. Sir, light bulb. Okay. लाइट बल्ब में कहाँ ऑसिलेशन है? Sir, swinging chair. Yes, swinging chair is one of the example. लेकिन ऐसी एक चीज है जो हर एक के घर में है और आप उसको ऑलमोस्ट डेली यूज करते हैं. अल्टरनेटिंग करंट इज ऑल्सो एग्जाम्पल, बट इट्स ऑल परवेडिंग एंड इट इज अवेलेबल ऑल द टाइम. ऐसी एक चीज है जो आप यूज करते हैं और आपको पता ही नहीं कि इसमें भी. यस, वेरी गुड सुष्मिता. व्हीकल शॉक एब्सॉर्बर होते हैं. कोई ऐसा है जिसके व्हीकल में शॉक एब्सॉर्बर नहीं है? कोई नहीं, अनलेस यू आर यूजिंग द साइकिल. ओके, साइकिल की सीट में भी होते हैं. सो इट इज एवरीवेयर, इट इज एवरीवेयर. Now we'll talk about the equation that we have derived in the video. What was that equation? Last equation क्या solve किया था? नहीं, किसी को याद नहीं? So someone who is very smart, he can go go to YouTube and search and then tell me what is that equation. So typically I have solved this equation and I told that the K by M value is taken as omega square, not omega. Why it is taken as omega square? That is because of the dimension. Okay? And then we have come across the last equation as, okay, let me share this screen first. Okay. So the equation was d2, yes, d2x by dt square plus Omega square x. omega square x equal to 0. Now, how do you understand this term d2x by dt square? Have you ever seen this term in your real life? Is it the user controlled thing, or it is something that is controlled by something else? We cannot control it. Yeah. No, you have seen this term in physics, in mathematics, and you have solved it again and again and again. I mean, there was whole paper of this differentiation or the derivative, right? In mathematics, you normally use differentiation. Let us differentiate this, let us differentiate that, and the differentiation of this is this, and so on and so forth. What exactly this term means, d2x by dt square? No one? Acceleration. Yes, it is acceleration. So it is a second order derivative of x with respect to t. That is a mathematical implication. Even though you don't understand what is x, what is t, you can say that this is second order derivative of x with respect to t. In physics, it is acceleration. Pranjal, you want to say something? No, sir. That's only acceleration. Okay. Yeah. So, is it possible that the user can control this this value, or it is controlled by something else?
I am asking about the, for example, the variables in computer engineering. So is it a user variable or it is something global variable which we cannot control? Come on, computer engineers. User variable, How? sir, because we can control the acceleration of the particle. How we can control the acceleration of the particle? In example. Sir, suppose the acceleration of the uh, सर वो पेंडुलम रहता है ना, उसका एक्सेलरेशन अपन कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी स्पीड अगर हमने कम रखी, मतलब उसको कम डिस्टेंस से हमने छोड़ दिया, तो एक्सेलरेट कम होगा। Are you sure? No, suppose you talk about this pendulum. Okay, I am just asking question. For example, this is a pendulum, and you just release this pendulum from here. Now, what is the force? Neglect the air resistance and this friction here at this point. What is the force that is acting on this? Gravity. Yes, it is gravity. What is the value of gravity? 9.8. 9.8 meter per second square. Now, if it is going here, suppose this, does this value changes? No. No, sir. No, sir. Then how can you say that the acceleration is changing? Now I'm just asking question. I am not giving any answer. I just want to know what are your ideas about this oscillation. So this class is for discussion. It is not for lecture. Lecture मैंने कल ही दे दिया आपको. That is what is called as FCR. Okay. Let me ask you. Just take the first order derivative dx by dt. What exactly it is? क्या होता है? Velocity. 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 Okay. Which velocity? You may be confused that what is the question I am asking. Which velocity means? Linear How many type of? velocity. Huh? Linear velocity. Linear velocity. Okay, linear velocity. But is it something like मैं अभी बाहर गया था और मैं वापस जब आया तो 60 के स्पीड से आया क्योंकि मुझे जल्दी पहुंचना था. Is that the same velocity what I am talking about? Let me take another example. I started from Nagpur and I took the electric cycle. Okay, I just bought new one, and I reach in 3 hours. It's 75 kilometers from Nagpur to Varda. So what is my velocity? What is my speed? 25 kilometers per hour. Is that the same what I am talking about ds by dt? Very correct calculation. 25 kilometers per hour. Is that the speed or velocity I am talking? ds by dt? Instantaneous velocity. Instantaneous. What is that? Instantaneous. You are on right track. At the point, sir. At the point, yes. At that point or at that time or point. Now, how do you define this? Have you ever seen this instantaneous velocity? कभी देखा है आपने? So when you ride Very- motorcycle. हाँ? Please go ahead, discuss. सर जब हम गाड़ी चलाते तब उस टाइम की वेलोसिटी वो ओडोमीटर पे दिखती है ना. Right. ओडोमीटर नहीं, उसे Speedometer. स्पीडोमीटर के. हाँ. ओडोमीटर वो Speedometer. किलोमीटर कितने किलोमीटर हो गए. So this is what you are seeing on the dial.
kilometer dial. Okay. Now what does it mean actually? उस पॉइंट पे मतलब किस पॉइंट पे, और मान लो कि यू आर डिफाइनिंग दिस v एज डिस्टेंस ओवर टाइम. Okay. So how do you say that there is no distance covered for that particular time? How do you know that how much distance has been covered? Where is the distance at that time or at that point? एक पॉइंट पे या एक मोमेंट पे आपको अगर वेलोसिटी डिफाइन करनी है तो वो मोमेंट कैसे आप फाइंड आउट करते हैं? सर ओमेगा की वैल्यू हमको पता होती है, अगर ओमेगा ओमेगा 0 है तो यस सर। ओमेगा की वैल्यू भी आपको तब पता चलेगी कि जब थोड़ा सा वो रोटेशन होगा. सपोज देयर इज नो रोटेशन and you don't have any idea of past event, how can you find out the velocity? इसको कैसे डिफाइन करते हैं आप? dx by dt को कैसे डिफाइन करते हैं? व्हाट इज दिस dx by dt? सर किसी स्पेसिफिक पॉइंट से डिस्टेंस जब लेंगे तब कौन से पॉइंट से? जैसे पेंडुलम है तो जो उसका सेंटर रहेगा हम्म. वहां से जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो लेंगे ना. For example, this much. यस सर. Okay, so suppose this is x. Why you talk about dx then? Why not x by t? इसको suppose t time लगता है, so why not x by t? What is the difference between x by t and ds by dt? So dx by dt is smallest distance. छोटा सा एक्स बाई टी इज लाइक एन एवरेज सर. वो थ्रू Okay. आउट द जो भी वो डिस्टेंस कवर करता है उसकी स्पीड होंगी सर. बट इंस्टेंटेनियस जो होंगी सर वो स्पेसिफिक पॉइंट पे वेलोसिटी बताएंगे सर. Okay, let us go for some graph and then we'll define the ds by dt. You are quite right. Let me get assured that you are quite good. Okay, this is time and this is distance. Now suppose I want the velocity at say point A. This is point A. How do you define this instantaneous at this instant? How do you define it? Graphically कैसे निकालोगे? सर x से a तक स्ट्रेट लाइन निकालनी पड़ेंगी और a से t तक निकालनी पड़ेंगी. ठीक है, उसको निकालनी पड़ेगी क्या? अब निकाल ही देते हैं, उसमें क्या है? आप बोल रहे हो ना परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, राइट? यस सर. That axis itself is not straight line. Anyway, this is very perfect perpendicular. What next? आगे आगे. जी सर, जो उसका डिस्टेंस होगा उनको x अपॉन t करना पड़ेगा. Suppose this is say x prime and this is t prime. Okay. So if I write x prime upon t prime, is that the what you mean dx by dt? यस सर. Anybody else? Or you agree with Vishnu? Yes, no. नहीं सर. नहीं तो फिर बताओ क्यों नहीं एग्री हो रहे? उसने इतने इतने अच्छे से बताया कि ये देखो ऐसे प्लॉट करो वैसे प्लॉट करो, फिर ये मेहनत लगती है भाई. सर या सर dx by dt मतलब change in velocity with respect to that specific time. okay, let me write change of ds by dt means change of Speed with respect to time. speed with respect to time. This is what Shreya is saying. Anybody else want to say something?
This was Vishnu. Change in distance with respect to time. Okay, Devansh has just changed the speed to distance. Where is change of distance? Now let us start with say 0. Okay, let us just join this for our understanding. So at time t it was 0 distance, and as the distance increases we have say new parameters x dash and t dash, and if as given by Vishnu, if we say x prime upon t prime or x dash upon t dash, that is what is the dx by dt. Then what is the average speed up to point A? What is the average speed? Don't type, Sir, please. x Yeah. dash minus 0 upon t dash minus 0. This is average, and x dash upon t dash is instantaneous. What is the difference then? X dash minus 0 is x dash. T dash minus 0 is t dash. So it is the same. So Yes. instantaneous velocity and average velocity is becoming same. Sir, but when we consider 2 points, here we consider the point of origin, that is 0. If we consider another point, suppose x1 and t1, then we can calculate the average speed, that is x dash minus x1 and t dash minus t1. Okay. Gunjan is saying, please don't type because I have to go back to the this meeting and then I have to go back to the another. Distance is not right word. Displacement with respect to time. Okay, Gunjan, accepted. At this moment, we'll just consider displacement distance are quite similar, but yes, you are right. And Harshali has taken one step ahead. Change in displacement with respect to. That is what I am asking. Where you are taking this change in displacement? Displacement में change कहाँ पे हो रहा है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ. What Vishnu was saying. I'm sorry, I missed what he told. So let me ask that At point A. let us consider the same point A, and now this guy say the name with say B, and suppose this is a guy name A and B will be something same. Let us take this as C. So these are the two guys or girls, whatever you like, B and C. Okay. So B is also traveling just like C, and at point A, let me just show you, very close to point A. Now you tell me the instantaneous speed or velocity. Will take almost similar. Whose speed or velocity is more at point A? Instantaneous. B और C, किसका स्पीड ज्यादा है? सर सेम रहेगा बोथ. सेम हो सर. इंस्टेंटेनियस सेम रहेगा सर, एवरेज डिफरेंट रहेगा. एवरेज कैसे डिफरेंट रहेगा? सर उन्होंने डिस्टेंस भी अलग अलग ट्रेवल किया है ना सर, कोई No, मतलब घूम के है. if we talk about velocity, then Yes sir, if velocity then displacement is considered and average will be same. then the average velocity will be same, isn't it? So at point A, yeah, सर yes, go ahead. डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम है सर, बट डिस्टेंस चेंज है तो फिर वेलोसिटी अलग अलग होगी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होगी सर. देखो सब लोग अलग अलग ही बोल रहे हैं. दिस इज डिस्प्लेसमेंट. सर एक बार आप पूरा रिपीट कर सकते हो क्या? हाँ बिल्कुल. क्या रिपीट करना है ये बताओ. सर मतलब सी बी वाला जो आपने सिचुएशन दे रखी है, कंडीशंस बस दी है. वो एक ग्राफ है ये कि इस पाथ से वो जा रहे हैं,
ठीक है, ये पाथ है उनका, ऐसे ऐसे येलो उसने, वाला। हाँ हाँ, येलो वाला नहीं, येलो वाला तो ये अपना वेलोसिटी वेक्टर, सॉरी ओके डिस्प्लेसमेंट ओके वेक्टर हो गया, ओके। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, ठीक है। लेट मी जस्ट रिमूव दिस येलो, ओनली टू पाथ्स, the two ways in which these two, Mr. B and Mr. C, they have reached point A at the same time, at the same time. So instantaneous speed at A, will it be same or different? That is what our question is. सेम रहेगा ना सर? Same मे क्यों बी रहेगा? डिफरेंट, सर क्यों? डिफरेंट भी रह सकता है, डिफरेंट रह सकता है क्योंकि क्यों? डिफरेंट भी रह डिस्टेंस, सकता है, सेम भी रह सकता हाँ है। सेम भी रह ऐसे कैसे? सकता है क्योंकि ऐसे कैसे? डिस्टेंस दोनों अलग अलग कवर कर रहे हैं ना। अगर एक टाइम पे पहुंचते किसी को ज्यादा टाइम लगेगा, किसी को कम टाइम लगेगा, तो उस बेसिस पे आपका अगर डिस्टेंस अलग है, स्पीड भी अलग है, तो फिर सॉरी टाइम भी अलग लग रहा है। नहीं, टाइम सेम टाइम है, कांस्टेंट है ना सर? सर टाइम टाइम सेम सेम, है तो भी डिस्टेंस तो अलग है, हाँ वही बोल डिस्टेंस रहा हूँ। इसलिए डिफरेंट रहेगी। but that is, then that is the average velocity ना, और average speed, वो तो एवरेज हो गया ना, आप पूरा डिस्टेंस ले रहे हैं ना। हम्म। फॉर एग्जांपल वर्धा से यहाँ से आप, फॉर एग्जांपल कौन सा गाँव है वो बीच में, नागपुर ले लो सर। नागपुर ही ले लेते, जान दो। तो वर्धा से नागपुर आप सोच रहे हैं, ठीक है, तो कोई एक, सपोज द टाइम इज टेकन इज सेम, एंड देन यू टॉक अबाउट द स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, उस टाइम पे वाला है ना। आप तो ये यहाँ पे भी ले रहे हैं, ये वर्धा में भी ले रहे हैं, वर्धा से लेकर नागपुर तक का डिस्टेंस भी ले रहे हैं, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम लेना है तो वो तो एवरेज स्पीड हो गया। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस? देखता At that हाँ, तो कैसे, जो किसी ने बोला कि वो स्पीडोमीटर पे दिखता है, तो स्पीडोमीटर पे तो आपका वेरी होता है ना स्पीड। ऐसा थोड़ी ना है कि आप वर्धा से निकले तो बिल्कुल 40, मतलब 40 की स्पीड से कांस्टेंट नागपुर तक पहुंच गए, होता है क्या ऐसा? नो सर। नहीं होता है। How do you find out how that vehicle understand that the speed of your vehicle is this at this instant? ये कैसे पता चलता है उसको? So at that particular time, the distance taken is very small, which is we can even consider approximately zero. कितना small? Yeah, Pranjal, go ahead. You can speak and you can make a chaos. Doesn't matter. ठीक है? आप एट ए टाइम 3-4 लोग बोलेंगे तब भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सर डिफरेंशिएट करके। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि डिफरेंशिएट करना मतलब क्या करना है? बैक टू स्क्वायर वन। That is what I am asking. कि this is what I want dx by dt. What is this actually? ये कैसे करते हैं आप? वही सर तो मैं वो पूछ रहा हूँ। उसी पॉइंट पे 2 पॉइंट लेते हैं ना सर। सर इक्वेशन बना के ना, मतलब एक्स और टी के टर्म्स में। कौन सा इक्वेशन बनाएंगे? ये तो स्पीड इरेगुलर है ना ये तो इरेगुलर है, तो उसका क्या का। इक्वेशन बनेगा? सर उसी पॉइंट पे, मतलब वो जो पॉइंट है ए निकाला है आपने, उसी पे हाँ इंस्टेंटेनियस अगर लेना है हाँ तो वहां से मतलब थोड़ा सा भी जैसा 1 सर mm या फिर 2 mm का डिस्टेंस है, हाँ। और वो कितने टाइम में कवर हो रहा है वो अगर ले तो हम निकाल सकते हैं सर डिफरेंशिएट करके। ओके, अभी इतना तो पॉसिबल नहीं होगा सर कि पूरा निकालेंगे, अगर पूरा निकाल लिया तो एवरेज स्पीड हो जाएंगे। अगर उसी हाँ पॉइंट पे लेना है तो अपन को वो 1 mm या फिर 2 mm डिस्प्लेसमेंट होने में कितना टाइम लगता, वो निकाल के अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, एज पर माय ओपिनियन। गुड। प्रांजल, you were saying something. सर ये स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ व्हील, टायर के रोटेशन Very से good. निकाल सकते हैं। So even though the approach of Pranjal and Vishnu are different, they are quite okay, they're quite good. Okay.
Now this is point A. Where should I take another point? ये दिख रहा है ना, ग्रीन से दिखाता हूँ इसको। ये हो गया आपका पॉइंट ए। दूसरा पॉइंट मुझे कहाँ लेना चाहिए? वन mm 2 mm। सर आपको एक्यूरेसी कितनी लगती है उस पर डिपेंड करता है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दैट? सर 1 mm पे ले सकते हैं। पक्का? सर या फिर अपन एक लेकर भी ले सकते हैं उसको। 1 मीटर? एक सेकंड, मतलब 1 सेकंड टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हाँ, वो भी ले सकते हैं सर। quite good, quite good logic. So you are not at all defining this distance. We don't know how much distance is traveling. We have to talk about the time. This is more important, because this is something like d by dt of x. So dx is not important. Are you getting my point? This d by dt, how small the time is. तो टाइम कितना स्मॉल लेना चाहिए? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, कितना लेना चाहिए? t tends to 0। तो उसका मतलब क्या है? ये बिल्कुल सही कहा आपने कि दिस इज समथिंग लाइक, अगर आप इसको डिफाइन करते हैं तो जैसे 12th में डिफाइन किया था ना, dx by dt, दिस x इज सेम एज दैट ऑफ दिस, वो सभी x एक जैसे, इक्वल टू लिमिट delta t tends to 0 and delta x by delta t. What is this delta t and why it is delta t tends to 0? Chaitanya, you want to say something? It is very short amount of time। Short मतलब कितना short? Where it is almost equal to 0। नहीं, अब almost equal to 0 तो 0.0000000000001, that is also, but practically it is not possible. सर मिनिमम तो मिनिमम लेना चाहिए, मतलब जितना अपने पास वो मिनिमम होगा डिस्टेंस, उतने अपने को एक्यूरेसी मिलेंगी सर, उतने अच्छे से अपने को वेलोसिटी कैलकुलेट करने को आएंगी, इसलिए वो टेंस टू 0 लिखा है सर वहाँ पे। That is good. You are saying very right that once you are talking about the accuracy, then as delta t tends to 0, जितना छोटा होगा उतना एक्यूरेसी जाएगा। सर अपने को जितना पॉसिबल होता है, अगर उसको इंस्ट्रूमेंट को पॉसिबल होता है कि वो 1 सेकंड का निकल सकता है तो फिर वो भी ठीक है, पर अगर इंस्ट्रूमेंट को पॉसिबल होता है कि 1 मिली सेकंड का निकाले या फिर 1 माइक्रो सेकंड का निकाले, तो वो माइक्रो सेकंड अगर निकालेंगे तो वो भी अच्छा होगा सर, अपने इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है वो फिर। तो आपकी गाड़ी में कौन सा यूज किया जाता है? क्या लगता है अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? सर अप्रोक्सीमेटली तो सेकंड के हिसाब से ही निकलता होगा एज पर मुझे कंफर्म नहीं पता है सर। ठीक है, और कोई? विष्णु सेज 1 सेकंड। नहीं, और किसी को कुछ पता नहीं? अरे अंदाज ही लगाना है, उसमें क्या है? गो अहेड। Okay, if I say that delta t equal to 10 minutes, will that be delta t tends to 0? क्या लगता है? नो सर। 100% श्योर? सर नहीं, डिपेंड करेगा सर कौन से केस में ले रहे तो। वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि किस पे डिपेंड करेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। मैंने लास्ट टाइम भी आपको इन्फिनिटी के बारे में बोला था कि दिस टेंड्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब मैथमेटिक्स में अलग होता है, विच यू कैन नॉट डिफाइन। फिजिक्स में अलग होता है। फिजिक्स में कैसा है, जैसे हम लास्ट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द फील्ड,
So field is 0 at the infinity. 0 means where it will be 0. So there is some range after which it is negligible. Then it becomes 0. Negligible मतलब 0. अब यहाँ पे आप कैसे कर रहे हो? कभी सोचा था इतना मुश्किल होगा ये dx by dt? हालांकि मुश्किल नहीं है ये. But the way it was taught to you may be different. It was like, okay, delta t tends to 0 and just forget about it. How much? How much? Anybody want to say anything? No, this is what the brainstorming is. बोलो, जो भी आपके दिमाग में आइडिया आता है बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, भले सही हो गलत हो, डजंट मैटर. नहीं? Okay, let me ask you another simple question. Oh, sorry. I have aeroplane, I have car, bike, bicycle. The approximate speed of this is 500 km per hour. This is about 100. No, you should not, but that is how people drive. Bike maybe 70, 60, 70. Bicycle maybe 12. Normally it is what is the speed that we are talking about. It may be slightly less or more. Now, if you want to use that speedometer, so what should be the ideal value of delta t? This is about 16 meter per second, right? Approximately. This is about 80, and this will be somewhere around say 14, 15. तो सको 96 बार से कम बात है 12, and this is about 8, 2 meter per second. बताओ. Am I in the meeting? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I thought I got disconnected. So what is your take? What will say कि नहीं ठीक है, यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू अगर इतनी लेते हैं तो हमें ये स्पीडोमीटर में बहुत अच्छा वेरिएशन मिल जाएगा. आजकल तो डिजिटल भी आ गए. अगर आपको ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना है तो डेल्टा टी आप कितना लोगे? आपके पास चॉइसेस है 1 सेकंड, 0.1 सेकंड, 10 सेकंड. लेट अस गो फॉर दिस वैल्यूज. 10 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 0.1 सेकंड, 0.01 सेकंड, 0.00001 सेकंड. इसके बीच में भी आप ले सकते हैं. व्हाट आर योर, as you go down then it will be more accurate. Yes. And why I'm stretching on this point is very important as far as your derivative is concerned. And then all the equations that you are going to solve in future, that is mostly all of them are derivatives. You talk about any machine, any machine. नहीं? कितना सिंपल सवाल है.
छोटा है तो कितना छोटा है भाई, बताओ ना। कैन यू कंपेयर, सपोज यू टेक से 1 सेकंड, लेट अस कंसिडर 1 सेकंड, ओके। 1 सेकंड में ये 12 मीटर जा रहा है, सॉरी 1 सेकंड में ये, हाँ 12 मीटर जा रहा है। ये 1 सेकंड में 16 मीटर जा रहा है, और 1 सेकंड में ये 80 मीटर जा रहा है। वेयर द एक्यूरेसी विल बी मोर, if you are not seeing, if लोवेस्ट you वाले में take सर? delta, yes, लोएस्ट वाले में एक्यूरेसी ज्यादा होगी। दिस इज वन आंसर। देवांश? यस सर। या देवांश ने बोला कि लोएस्ट मतलब ये बाइक, सॉरी बाइसिकल में ये इसका एक्यूरेसी सबसे ज्यादा होगा। व्हाई देवांश इज फीलिंग समथिंग लाइक दिस? एनीबॉडी एल्स कैन से समथिंग लाइक दिस? व्हाई ही इज सेइंग कि ये बाइसिकल की ज्यादा एक्यूरेट होगी? सर एयरप्लेन के ज्यादा एक्यूरेट होंगे। ओके, विष्णु इज टेकिंग द अदर एंड, एयरप्लेन की सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगी। व्हाई? सर रीजन बता दूं मैं अपने इसका? हाँ बोलो। सर मतलब हम इवन स्केल में भी जब मेजर करते हैं, नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ सर, जो स्केल होता है उसमें भी हम 1 सेंटीमीटर करते हैं, अगर उसको और थोड़ा अगर हमारे पास वैसा हो जिसमें मिलीमीटर्स वगैरह हो और बेटर होगा। मतलब और छोटे छोटे स्केल पे जा रहे हैं ना, न्यूमेरिकल बिल्कुल वैल्यू और कम कम हो रही है। तो बिल्कुल। इसलिए बाइसिकल का अगर लेंगे जिसका 2 मीटर पर सेकंड है, तो उससे ज्यादा एक्यूरेसी आएगी मेजरमेंट करने में। डू यू एग्री विष्णु? सर मुझे वही बोलना था कि जैसे अपन 1 मीटर का लेते हैं, मतलब 1 सेंटीमीटर लेते हैं अपनी स्केल में, अगर वहां पर 2 मीटर से अच्छा 2 लाइन्स जैसे होती है, जैसे 0.5 की एक लाइन होती है और एक 1 सेंटीमीटर की होती है, बाकी भी होती है पर अपन 2 ही कंसिडर करते हैं इन केस ऑफ बाइसिकल। तो Yes. वहां पर अगर 2 ही होती है तो अपने को वो उतनी ज्यादा एक्यूरेसी नहीं मिलेंगी, और अगर उसमें ही 80 लाइन्स होती है जैसे एयरप्लेन के केस में, तो वहां पर ज्यादा एक्यूरेसी मिलेंगी, ऐसा मेरा कहना था। नहीं, इसमें क्या हो रहा है कि 1 सेकंड में वो 80 मीटर ट्रेवल कर रहा है एयरप्लेन, जाके बाइसिकल सिर्फ 2 मीटर ट्रेवल कर रही है। तो अगर सेकंड वाला हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो इट इज क्वाइट पॉसिबल टू मेजर दिस 2 मीटर क्वाइट एक्यूरेटली। We may not be able to measure 80 meters accurately. Okay, तो एक्यूरेसी हर एक की अलग, या गो अहेड। डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी। क्या कम रहेगा? डिस्टेंस कम रहेगा तो एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी। राइट, वेरी राइट, वेरी राइट, क्योंकि हम उसको मेजर कर पाएंगे ना। आप देखो स्पीड कितना ज्यादा है, 1 सेकंड में वो 80 मीटर चला गया पलक झपकते। आप कैसे उसको मेजर कर पाएंगे? इट विल बी नॉट मच एक्यूरेट। 2 मीटर जा रहा है, ओके, वी कैन मेजर इट। ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इफ आई चेंज, इफ वी कीप द बाइसिकल सेम, ये अब स्पीड हमने कांस्टेंट रखा, एंड आई रीच टू दिस पॉइंट, कि ये इस पॉइंट पे मुझे इस टाइम लेवल पे मैं मेजर कर रहा हूँ। ओके, सो द लास्ट वन, फॉर एग्जांपल लेट मी टेक दिस एज डी and then C and then B and A. So we have 4 options now. बाइसिकल का ही लेना है, लेकिन 4 ऑप्शन है। आप कौन सा चूज करोगे? आप कौन सा चूज करोगे और क्यों? वही क्यों चूज करोगे? 1 सेकंड वाला चूज कर तो वो क्यों? 0.1 वो क्यों? 0.01 वो क्यों? और 0.00001 क्यों? बाकी लोग है कि नहीं मीटिंग में? तो नहीं बोलेगा उसकी अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। अब बोलेंगे सर। नहीं सर इसमें भी सबसे छोटा डी। ओके,
देवांश है सिलेक्टेड सबसे छोटा जो है वट एवर पॉसिबल, जो सबसे छोटा होगा टाइम वो चूज करेगा। और सर सेम क्या कहा श्रेयांश? सेम सर, यानी सबसे छोटा वाला ही। सबसे छोटा वाला, ओके। एनीबॉडी सर एल्स? ऑप्शन ए। ए। यस सर। Vishnu is taking exactly opposite to Devansh. Okay. Why? Why you want to take 1 second only? नो सर, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट लेने का नहीं है, पर नहीं नहीं, 1 मैंने सेकंड जैसे में बोला। है। हाँ। सर वो 2 मीटर पर सेकंड जा रहा है ना, तो एग्जैक्टली अपन को डायरेक्टली कैलकुलेट करते आएगा सर। जैसे 2 मीटर चला है और डायरेक्टली 1 से डिवाइड कर दिया, तो नहीं अपने वो को तो डायरेक्टली बहुत सिंपल है वो, एक्चुअली दैट इज नॉट बिग डील। ये क्या हो जाएगा, सपोज ये 0.1 सेकंड लिया हमने, तो ये हो गया 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर का 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर जाएगा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर जाएगा यहाँ पे, और कुछ तो इट इज हाँ नॉट सर, डिफिकल्ट। मगर एग्जैक्टली अपने को पता है कि 2 ही सेंटीमीटर जा रहा है, तो फिर अपन 1 सेकंड ले सकते हैं ना। अपने को अगर नहीं, मेरे को ढूंढना ही है कि इतने सेंटीमीटर और इतने एमएम जा रहा है, तो अपने को ठीक है कि डी ऑप्शन तक जाना पड़ेगा। पर अगर अपने को हार्डली पता ही है कि जैसे गाड़ी के स्पीडोमीटर में रहता है, अपने को उतने डीप में नहीं जाना पड़ता कि इतने पॉइंट से जाना है, या फिर अपन 30-35 भी समझ ले सकते हैं, तो उस केस में ए चल जाएगा सर। बाकी डी भी ले सकते हैं अगर खूब एक्यूरेट चाहिए तो, लैब पर्पस के लिए। Anybody else want to say anything? Okay, Tushar says option D. Okay. Now, Vishnu has pointed out some logical point, whereas Devansh and who was the other? And then Tushar, they said जितना छोटा रहेगा उतना अच्छा है, राइट? ठीक है, ठीक है, यही पॉइंट है आपका। अब मान लो कि आपको दुकान में जाके, हाँ, अगर आपको दुकान में जाकर शक्कर खरीदना है, ठीक है, तो आप कितना शक्कर लेते हैं नॉर्मली? कितना लेते हैं? 1 kg, राइट? मतलब मिनिमम अगर लेना है तो 1 kg लेते हैं। तो क्या आप 1 kg वाला जो वो मेजरिंग वाला होता है ना, उसके लिए जो सोनार के दुकान पे मशीन होता है वो यूज करेंगे क्या? नहीं सर। क्यों नहीं करेंगे? एक्यूरेट चाहिए आपको, बहुत छोटा हो जाएगा वो। एक्यूरेट चाहिए ना, मिलीग्राम तक मिल जाएगा ना। बहुत छोटा हो जाएगा सर, स्केल लेवल उसका इतना तो मेजर भी नहीं कर पाएगा। आपको एक्यूरेट ही चाहिए तो आप एक्यूरेट ले लो ना, क्या फर्क पड़ता है? प्रैक्टिकल थोड़ी ना होता है वैसे एकदम एक्यूरेट। वही मैं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकली आपको क्या लेना चाहिए। See, whenever you will be thinking of writing some software for these kinds of hardwares, you will have to think कि आपको ये टॉलरेंस कितना रखना है, this called as tolerance, और एक्यूरेसी कितना रखना है। तो इट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हैं। Now, even we talk about bicycle, if the bicycle is ride by you people, then 2 meter per second is quite good. It is not bad. But the same guy who is riding the bicycle, who is just tracking his velocity or the speed, not velocity, in this case it will be speed. If he takes the part in the marathon, अब मैराथन में आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए? 1 सेकंड में चलेगी? मिनिमम कितना चाहिए आपको? टाइमर 1 सेकंड तक, 0.01 तक, 0.001 तक। तो वो जो चीज है वो आपको समझना पड़ेगा कि it is depending upon the situation. Even though suppose somebody is running,
But if he is running just to save himself, then he don't need to. I mean, he don't need to find out the accurate reading. He said, okay, I'm just running with the speed of 10. That is okay. But if he is running in marathon, जहाँ पे एक मिली सेकंड का भी फर्क बहुत बड़ी चीज होती है, that's why what you are talking about. Yes, विष्णु was saying the same thing कि आपको क्या चाहिए उस पर डिपेंड है कि अगर मैराथन है तो then it will be 0.001 is also a big deal. It is also bigger than this delta t. So when you say this delta t tends to 0, in case of marathon, it will be 0.000001, something like that, depending upon what are the application you are talking. But if you are talking about cycle racing for say 1 hour or 2 hours, 21 kilometer, 42 kilometer, whatever it may be, then the accuracy 0.01 is also good enough. But if you are talking about the say planes, airplanes, then 1 second is good enough. So it is the logic that इसको ध्यान में रखते हुए फिर मीटर बनाते हैं. नाउ कमिंग बैक टू दिस, आपको डेल्टा टी समझ में आ गया? टेंड्स टू 0 का मतलब क्या हुआ? यस नो? रिपीट करो. यस सर. यस सर. रिपीट करो, रिपीट करो. नहीं यस सर किस लिए बोला? सर समझ में आया इसलिए बोला. हाँ ठीक है कोई ऐसा कि जिसको समझ में नहीं आया? यू कैन रेज योर हैंड. नो ओके, बाकी लोगों को भी समझ में आ गया. जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे डिस्कशन में उनको भी आ गया ध्यान में. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू टेक dx. अब dt तो समझ में आ गया, अब dx कहाँ से लेंगे बताओ? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? कुछ नहीं बोल रहे मतलब नहीं आ रहा है. उनको सुनने के लिए मजा आ रहा है तुषार को. देखो विष्णु, now tell me how you are going to find out the dx. dx कैसे फाइंड आउट करोगे? पॉइंट तो एक ही है अपने पास, दूसरा पॉइंट कैसे लोगे? कहाँ लोगे? सर क्या सर जितना टाइम है, जैसे अगर 0.1 सेकंड है तो उस टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया? लेकिन कहाँ से कहाँ तक? लेट मी गिव द, मतलब मैं क्यों इतना स्ट्रेस कर रहा हूँ ये देखो. अगर मैं ये 2 पॉइंट लेता हूँ फॉर एग्जांपल, सॉरी दूसरा कलर यूज करता हूँ, यहां से यहाँ तक, ठीक है. अब आप देखो कि इसका ये जो बी वाला ग्राफ है, इसका ये पॉइंट यहाँ पे आ गया और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया, और ए वाले का यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है. अब बताओ कि वेलोसिटी किसकी ज्यादा है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसकी ज्यादा है? टाइम सेम है. ओके, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है, फिर से बताता हूँ. लेट अस यूज द स्केल, वी हैव दिस फैसिलिटी. बी की होंगी बहुत एक्यूरेट. हाँ बी की ज्यादा होंगी ना सर? देखो ना, देखो आप लोग बोल रहे थे कि दोनों की इंस्टेंटेनियस स्पीड सेम है, ठीक है, और अब आप ही लोग बोल रहे हो कि बी की ज्यादा है, सी की ज्यादा है, जो भी है. ओके, नाउ दिस इज से t1 एंड दिस इज t2. तो ये जो हो गया आपका, ये हो गया डेल्टा टी. वॉट एवर दिस इन बिटवीन, दिस इज डेल्टा टी. नाउ फॉरगेट अबाउट डेल्टा टी, नाउ यू टॉक अबाउट डेल्टा एक्स. अब आप देखो कि जिसका डेल्टा एक्स ज्यादा उसका वेलोसिटी ज्यादा. am I right? Yes sir. Yes Right? sir. This is very simple. Now here you can
मतलब ये कैलकुलेट करने की जरूरत है, ये आप देख सकते हो कि ये बहुत ज्यादा है डिस्टेंस। ये वर्टिकल में मेजर करना है, ये याद रखना। ये कैसे मेजर करना है? वाई कहाँ पे है आपका? ये इधर, ये वाई, ये इस तरह, सॉरी एक्स, एक्स जो है वो इधर, ये हो गया इसका, और ये हो गया बी का, और ए का कितना आएगा? ऑलमोस्ट दिस, राइट? So this is very small for A, whereas this is quite big for B. Sorry, not A. This is actually C. This C. अब आप बोल सकते हैं इस टाइम पे कि द सॉरी 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 not the average velocity. Instantaneous velocity is much high for B as compared to C. अब बताओ कि शुरू में किसने बोला था कि दोनों की सेम होती है? This is how, yeah, he is very honest, Vishnu. He is very honest. उसी ने बोला था, now he has lead us to this conclusion कि नहीं, B की बहुत ज्यादा है और C की कम है। ठीक है? Now this is how you are to do the same thing. This is called as brainstorming. ठीक है? हिंदी में उसको अगर ट्रांसलेट किया जाए तो माथा पर्ची हो गया है। ठीक है? तो ये सब करके आपको क्या मिला? तो लास्ट में आपको ये नॉलेज मिलना चाहिए, that is what I am expecting, that the instantaneous velocity is calculated for a very short time. How much distance it is traveling? So the distance traveled in last short time divided by that short time. Short कितना? वो डिपेंड है कि आपका एप्लीकेशन क्या है, आपकी एक्यूरेसी कितनी है। Now a day long may be very short if you consider the rotation of Earth around the sun or rotation of sun in the galaxy. अब उसमें तो years भी बहुत छोटा हो जाएगा, तो few years will be very very small time. समझ में आ रहा है? अननेसेसरी बहुत ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, नहीं तो फिर क्या होता है, फिर जियोजेब्रा में आपने शायद देखा होगा कि आपको आंसर मिलता है 13 डिजिट में। दैट इज नॉट नीडेड एट ऑल। अगर अगर मैं ये कहूँ कि आज का जो लेक्चर है अपना वो 58 minutes and say 39 seconds and then 0.7839258 इतने आवर्स का हो गया, सॉरी मिनट्स का हो गया। 58 मिनट्स है, फिर ये सेकंड है, फिर ये मिली मैक्रो जो भी है। इज इट नेसेसरी? कैलकुलेट कर सकते हैं हम, नहीं ऐसा नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी अनलेस यू आर एडिटर। एडिटर ठीक है, आप उसको एडिटिंग करना है तो फिर इतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए। तो दिस इज व्हाट इज यू आर लर्न इन मे बी 5th और 6th स्टैंडर्ड, सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है? सो सिमिलरली you have to apply the logic to find out what is the dx by dt, and if you take this point, then in general what we find out the dx by dt is the tangent. okay? यहाँ पे टेंजेंट ऐसे आएगी, यहाँ पे टेंजेंट ऐसे आएगी, और इस टेंजेंट का, हाँ टेंजेंट का स्लोप ले लो आप, हो गया काम। वो भी क्या करता है, इधर का एक पॉइंट उधर का एक पॉइंट और उसके बाद टेंजेंट निकालते, दैट इज ओके। ठीक है? टेंजेंट का स्लोप निकालो या इधर उधर का एक एक पॉइंट ले लो, गुड इनफ। क्लियर? एनी डाउट? यस सर। एनी डाउट? एनी डाउट?
No, sir. This is what you have to do at your home. आप किसी भी अपने दोस्त को पकड़ लो और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करो, एंगुलर वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। एंड देन आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है घर पे, इज वेरी इजी। कोई भी एक सपोर्ट ले लो, इसको एक थ्रेड लगा लो, कोई भी एक हेवी ऑब्जेक्ट लगा लो, हेवी, बहुत लाइट नहीं, कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड देन ऑसिलेट इट, ठीक है, जितना रेगुलर हो उतना अच्छा है। बॉल वगैरह टाइप अगर है तो दैट इज वेरी गुड, ठीक है। नहीं मिला बॉल तो ठीक है, दूसरा कुछ आप सॉलिड मटेरियल यूज करो, हॉलो नहीं, सॉलिड मटेरियल, ठीक है। इवन इफ यू यूज बेलन वगैरह आप यूज करेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आई डोंट माइंड, टॉक टू योर मदर। What you have to find out is, number one, how the amplitude of this is changing with time, obviously with time. Then we define the positions at this is mean position and this is extreme. Both are extreme. Okay. So what is happening with these cases, like what happens at mean position, what happens at extreme position. Number two, velocity. Now this is velocity means linear velocity, and then the acceleration. Obviously acceleration means linear acceleration. Then ये लिख लो आप लोग, angular velocity, then angular acceleration, ठीक है। तो ये नीचे लूंगा तो बाकी लोगों को दिखेगा नहीं, तो मैं यही पे लिख लेता हूँ। जैसे चार्ट बनाना है आपको, मीन पोजीशन पे क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, हर एक वैल्यूज आपको ये पुट करनी है, ठीक है। एंड देन 6 नंबर इज द फोर्स, 7 नंबर इज द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे काउंट करते हैं, you go for extreme to extreme, और एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम मतलब उसी जगह पे वापस आएगा वो। सपोज एक्सट्रीम ए एक्सट्रीम बी अगर हम लिखते हैं तो एक्सट्रीम ए से जाकर वापस एक्सट्रीम ए तक आने के लिए टाइम जो लगता है दैट इज अ टाइम पीरियड, ओके। या फिर बी टू बी, एंड देन लास्टली द फ्रीक्वेंसी। इसके अलावा भी आपको अगर कोई पैरामीटर सोचते हैं तो गो अहेड, यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट। अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया तो आपको कोई भी जरूरत नहीं ये चैप्टर पढ़ने की, ये सब कुछ समझ में आ गया, ये समझ लो। हाँ यस, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी आई फॉरगॉट, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियसली टोटल एनर्जी। ये सब पैरामीटर आपको कैलकुलेट करके लाना है, या तो वो मिनिमम होंगे या मैक्सिमम होंगे या कांस्टेंट रहेंगे। यू डोंट नीड टू कैलकुलेट, यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व ये मिनिमम है, मैक्सिमम है, या कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन?